Hello everyone, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra Thoughtscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. जैसा कि आप सबको पता है कि पॉजिटिव मंत्रा को डिजाइन करना, रिसर्च करना, सारी चीजें, कंटेंट, एवरीथिंग इज डन बाय डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर. And today we have a very special guest with us, that is Master Abhyuday Sharma. He is studying in 11th standard and he is from Indore. So welcome Abhyuday. So Abhyuday, we want you to tell us something about you. आप थोड़ा सा yes, tell us something. What are you doing and all? Oh, sure, Auntie. So first of all, myself, Abhyuday Sharma, studying in class 11th, as Anita Auntie already said it. So literally, my hobbies are reading, playing video games, listening music, singing, and playing badminton, cricket, and all of these. So first of all, before joining Positive Mantra, as Anita Auntie take the leads for this Positive Mantra, it is a very good process for teaching a student or a person how to behave very properly. In my case, this is true that how to behave properly for only my case. For everyone has a personal case of his own. So personally, in my case, so behavior perspective. So when I joined Positive Mantra, so till then my behaviors was not very accurate. I need to use this word accurate with my parents, with my friends, classmates, all the people. But after attending the Positive Mantra classes, in my behavior there was a certain change which my parents, my friends, all noticed this. So it was a very good thing. So I noticed in my life, and my parents and my friends also appreciate this because I'm a very short-tempered guy. So after seeing that I'm not being very short tempered, my all friends seeing that, so they were really after a shock कि इसको क्या हो गया, ये तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देता था कि अब ये गुस्सा भी नहीं कर रहा है, ऐसा क्या क्या करा तूने. So I said nothing. There was classes like Positive Mantra as a thought escape. So I have recommended to 5 or 4 students to them of Anita Vyas and this Positive Mantra and thought escape. So maybe they will contact her and start doing as I do. That's great, Beta. I'm so happy that you have adopted it so well. So, like, how did you come to know about Positive Mantra sessions? Actually, my grandparents are with Dr. Gautam Chatterjee. So, as a leader, as a head of Positive Mantra Thought Escape, Gautam Chatterjee is the head of Positive Mantra. So that's why, first of all, Gautam Chatterjee talked about my grandfather. That tell Abhyuday to come with us. We will have a great time with us. So we will prepare with him good manners. So Dadu also tell, yeah, Abhyuday, you should go. So first of all, okay, I said to whom I would talk. My first question was this: to whom I will be talking of, Gautam Chatterjee or Anita Auntie? First question of, so my grandmother said that till now it is not sure कि Gautam uncle will talk to you or Anita Auntie. We will confirm it and tell to you. Okay, no, okay. Then the next day they said that Anita Auntie will talk to you on the video classes. So she will prepare you how to behave, how to set your goals, how to do your time management, how to do your social management in all the way of lives. Okay. Actually, Dr. Gautam Chatterjee sir doesn't keep a good health. So earlier he used to take sessions, but nowadays he Yeah, cannot because of his health problems. But of course, in all my yeah, sessions, he is the one. The energy is his only. Uh, Great, beta. So you just now you said that we discussed time management also. So can you just throw yeah. a little light on like how did time management help you and all? Yeah, time management is nothing about just so much. The people said time management इतना chaos है, हमारा time management नहीं होता, हमारे पास इस चीज के लिए काम नहीं होता. We have to need time. हमें time में से भी time निकालना पड़ता है हमको अपने काम करने के लिए. हमको अपना time management ऐसे करना चाहिए कि जो हमारा काम उस दिन में नहीं भी हो रहा है, चाहे उसको थोड़ा सा time दो. Little bit out 15 minutes, half an hour, मतलब that much only. उसको थोड़ा सा time दो ताकि वो बिल्कुल
लगे कि हमने उसको थोड़ा देखा था. As a well being said, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, which means you are studying only. So after studying 2 hours or 3 hours, take a full strength set of 2 to 3 hours, not half an hour, then 1 hour, then 1 hour, then half an hour. Take a full set strength of 3 hours, then take a break of 1 hour. So it will be very useful that if you do, I will study 1 hour, then I will take a break of 1 hour, then I will study 1 hour, then I will take a break of 1 hour. It is not useful. Then you will say कि आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मेरा पूरा काम खत्म नहीं हुआ. Take a full strength of break of 3 hours, study 3 hours. After then take a break for 1 hour at least to relax your mind, meditate yourself, relax your mind, eat snacks, eat food, rest, sleep, whatever you want to do, listen music, whatever you want to do in that time. After that, again sit for 2 hours or maximum sit for 2 hours. Because if you sit 1 hour and take a break of 1 hour, after studying, every child, every people, everyone take a break of 1 hour at least. कि अगर वो बोलेगा भी कि नहीं मैं सिर्फ 15 मिनट के लूंगा, वो 15 मिनट खिसकते खिसकते वो कब 1 hour लगेगा कि अरे टाइम टेबल मैच नहीं हो रहा, रात को खींचना पड़ेगा थोड़ा, फिर रात को नींद आने लग जाएगी, रात को सो जाओगे, फिर टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन की खत्म आपकी. तो इसलिए आपको मैनेज ही ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसमें आपका पूरा मैच हो जाए. Yes, that's great. So it is already registered in our mind that my break will be of 1 hour. So your time will not be, Yeah. you will not be lagging behind the time. That's great. So beta, did it help you in your studies, like to complete your portion and all this time management? Yeah, actually, yes. So actually, I made a timetable for at least 15 days back, a new timetable, because papers are coming on in October. So we have to make a new timetable of courses. इसके अक्टूबर में पेपर आ रहे हैं कि कैसे पूरा फॉर्मेशन करना है, इतने इतने चैप्टर आ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है. तो उसके अंदर क्या है, आपको उसके अंदर पूरा मैच करना पड़ेगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट को, ये नहीं कि जैसे कि मेरा ऑप्शनल पीई है तो आपको ऑप्शनल के लिए कम टाइम देना है, या फिर आपको इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए कम टाइम देना है. आपको पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट के लिए नॉर्मल उतना ही टाइम देना है. तो वो 24 आवर्स में आपको, मतलब मैक्सिमम अगर मैं 2 आवर्स भी लगाऊं तो 2 आवर्स, और मतलब मेरे मोस्ट ऑफ सिक्स सब्जेक्ट्स हैं तो 12 आवर्स मेरे पूरे पढ़ाई को डेडिकेट होंगे. अगर नॉर्मल एक तरीके से मैथ्स हुई, तब अगर पूरा हर एक को मैं 2 आवर्स हर एक सब्जेक्ट को मैं स्लॉट करूं, तो उसके अंदर फिर आपको अपने बाकी काम भी करने हैं. यू हैव टू डू एंटरटेनमेंट आल्सो, यू हैव टू वॉच टीवी, यू हैव टू लिसन म्यूजिक. मतलब कि आप ये नहीं कि अगर आपको कुछ काम करना है तो आप बाकी सारी चीजें छोड़ दो, आप टीवी देखो, सब कुछ देखो, पर उतना स्लॉट एक बार खत्म करके फिर ये चीज देखो. तो उसमें क्या रहेगा कि आपको ये भी लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा काम खत्म हो चुका है, अगर मैं आज थोड़ा सा टीवी ज्यादा भी देखूंगा तो ठीक है, मेरे लिए ठीक है, आज तो मैं आज अफोर्ड कर सकता हूँ थोड़ा ज्यादा टीवी देखना. पर वही अगर आपका दिन में काम बचा रह गया और रात को आपने टीवी भी ज्यादा देख लिया, तो फिर वो अगले दिन पे लैग पड़ जाता है. और लैग पड़ना मतलब कि कोई भोज पड़ने से कम नहीं होता. फिर आपको उसको कंप्लीट करने में टाइम, फिर क्लास के साथ लगने में टाइम, फिर वो टाइम थोड़ा सा मैच हो जाता है. Great. Actually, rejuvenation is very important in life because all work and no play makes Jack a dull boy. So rejuvenation is very important. That's great. Uh, you told me that yes, there is a change in your behavior. So beta, because I know, but still I want you to tell everyone, making a transformation in behavior is the most difficult thing I feel for everyone, not only for children, for the elders also, because people don't want to change. So this is something you have achieved. I must congratulate you. So can you just share with all of the viewers that how you made a transformation in yourself, in your behavior? I mean, what techniques did you use to this for this transformation? Okay. So first of all, there is not even a technique so that I have used to transform my behavior into a normal guy. So first of all, as you said, to meditate for 5 to 10 minutes daily, so that it could be very really full कि तुम्हारा माइंड स्टेबल रहेगा उस चीज से. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका क्या रहता है, जब आपको आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता था, आपको गुस्सा आता है. आपका गुस्सा जब बढ़ता है, फिर आप कोई गलत काम कर देते हो जो किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा ना लगे, इन द बोथ वेज.
कि किसी को अच्छा लगता है वो काम, किसी को वही काम बुरा लगता है. So first of all, इसके अंदर मैं कहूँगा, first of all meditate yourself every day for maximum 5 to 10 minutes. कि आप मेडिटेशन करिए, आप अपने माइंड को स्टेबल करिए. जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, आपका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं होगा. जब वो स्टेबल फॉर्म में आना शुरू होगा, फिर उसके बाद जब भी आपके साथ कोई मतलब कि नॉर्मल इंसिडेंट भी हो, आप बिल्कुल, जैसे अगर घर में ही कुछ हुआ हो, अगर आपकी दोस्त से ही लड़ाई हुई हो, आपके बेस्टी से लड़ाई हो, और आप फिर किसी का शेयर नहीं कर सकते, नॉर्मल टेक अ डायरी. एक डायरी बना लो अपने लिए, जिसके अंदर आप रोज लिख दो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ ये हुआ. क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को बताते हो तो क्या पता वो दूसरा आपका दुख समझे ना समझे, क्या पता वो दूसरा आपके दुख का मजाक उड़ाए. ही वुड लाफ एट यू कि ये कौन सी बात होती है. तो डायरी डजंट डू दिस. डायरी आपके थॉट्स को एक बंच ऑफ पेजेस में रख लेती है बस, कि हाँ मैं इसी के अंदर रहेगी वो. जब तक वो खुलेगी नहीं, वो तब तक किसी किसी को पढ़ी नहीं जाएगी, ना वो नहीं होगी. जब तक वो बंद रहेगी, वो सब चीजें, हमारे थॉट्स, हमारे अंदर की पावर, हमारे अंदर का गुस्सा, सब डायरी अंदर ले लेगी. अगर हमने एक बार उसमें हमारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, हमने उसके अंदर अगर एक बार लिख दिया, तो इसलिए मेक अ डायरी. तो फिर मेडिटेट करिए आप, तो आप अनुलोम विलोम करिए, जिससे उससे भी गुस्सा बहुत जल्दी कम होता है. Yes. सो बस ओनली दीज 2-3 many Okay. steps to control back to your own behavior. Great. Okay. So you just now mentioned meditation. So being a student, Yeah. because when I talk to many students, so mostly students, they don't know much about meditation and they feel that it is something spiritual. They don't realize the scientific base behind it. So what is your experience with meditation? How do you like it? And which meditation Actually, you are I'm a doing? Dikshit from. That also you tell. हाँ, so actually I'm from Dikshit from Ramsharanam, as you know. Mm-hmm. So first of all, they taught us how to meditate, even only how to take a meditation, because meditation is a very important step in the life to control everything, because it can control everything. So for meditation, we have to do nothing, just sit straight. Your backbone should be very straight, so that your concentrate would be here, the center of your head. After that, your center of the connection will be mere in the center of the head. Speak up Ram in your own mind. Ram, 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 Ram. Sit for 5 to 10 minutes in your mandir only, or on your bed, but your backbone should be very straight. Then take a long breath and relax yourself very easily. Take 5 to 10 long breaths, so that it can do many things. It can lower the blood pressure of a people. If someone do an Anulom Vilom meditation, it can down the sugar, because this is a natural way to cure a person. Meditation, Yes. Anulom Vilom, yoga. This is a natural way to cure a person. So we should do this, because this is lockdown. So we are bored on the only house, because no one is going outside. So let's do something for ourselves, because we don't have time. When the lockdown will be open, we don't have time for ourselves only. That's true. School जाना है, ये जाना है. तो God has given us time for sit in our house, meditate ourselves, control our own selves. So that's Yes. why we should do these things in our home right now. Yes. Yes, beta. Like you are from Ram Sharanam, so you chant Ram. Otherwise, the students, they can chant their own belief system, own mantra, and even some Yeah, students say, yeah. yeah. So if they are me, I'm not saying you said only Ram Ram. You can say Om Namah Shivaya, Om Ganesh. Anything. Which spiritual power you believe in, you can That's speak true. that mantra. On which spiritual power you can believe. But I'm very happy to see you, because at this age you are meditating and it is really helping you. So basically, what did you like about the positive mantra sessions? Because it is one-to-one and it really does matter your views. What did you like Yeah. the most? The approaching of the situation. Okay. First of all, the approaching of the situation. So होता क्या है, जैसे आप किसी से 1-to-1 टॉक कर रहे हो, या तो उसको वो बात समझ नहीं आती आपकी, या तो वो उसको समझ भी जाए तो वो ढंग से उसको समझा नहीं पाता. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दो चीजें मेन मैटर करती हैं. अगर आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो, क्या उसको समझ आ रही है, क्या वो समझ के उसको आपको सोल्यूशन निकाल के दे सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मैसिव थिंग्स
we should know कि when we are in a conversation with each and another. So in this मतलब कि मेरे को ज़्यादा explain नहीं करना पड़ा. मैं मतलब जैसे normally मेरे को बहुत explain करना पड़ता है, मतलब जैसे ही मैं कुछ बोलता था आप समझ जाते थे कि हाँ this is the problem, so we should do this thing. So as a goal, you said as a goal हम goal ये बनाएंगे. So ऐसा मतलब कि कुछ का टारगेट रहता है एज अ मैसिव थिंग कि हम इतनी सारी चीजें कल तक खत्म कर देंगे, पर नहीं, हमें टेक अ, बिकॉज अगर आपका बिहेवियर वगैरह सब कुछ चेंज्ड है आपका, तो इट विल टेक अ नॉर्मल टाइम टू कम बैक इन द सेम सिचुएशन व्हेन यू वर स्मॉल लाइक ए किड, कि क्यूट है, मतलब बहस नहीं करता, नॉर्मल इन दैट वे. सो उसके लिए आपको क्या रहेगा, आपको छोटे छोटे अपने लिए गोल्स बनाने पड़ेंगे. जैसे आपने करा कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, इस हफ्ते में गुस्सा नहीं करूंगा, इस महीने में गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज इस महीने पूरे सबसे प्यार करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा इस महीने तक, चाहे कुछ भी हो जाए. तो आप जब तक वो, अगर आपका वो क्लियर होता जाएगा, तो एज यू सेड अब मेक अ चाय पार्ट ऑल्सो, चाय पार्ट. तो उसके अंदर क्या रहता है, आप हफ्ते का बनाओ, चाहे महीने का बनाओ, चाहे 3 मंथ्स 4 मंथ, जितना आपने टाइम का बनाना है, हर दिन के बाद एक स्माइली और या फिर एक सैड फेस बना दो. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या रहेगा, जिस सैड फेस तब बनाओ जब आप, जिस दिन आपने गुस्सा कर दिया, और स्माइली तब बनाओ जिस दिन आपने गुस्सा नहीं किया. और जब आपने जिस दिन, तब तक काउंट मत करो स्माइलीज और सैड फेसेस को जब तक आपने पूरा, मतलब जब तक आपने टारगेट ले रखा है, जैसे आपने वीक का ले रखा है या फिर मंथ का ले रखा है, तब तक उसको पूरा करो, और जब पूरा हो जाए तब उसको गिनो. Then count कि how many smileys I get, how many sad faces I get. So after that analyze by your own self कि हाँ मैंने की है गलती, ठीक है, अगली बार से इससे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आएगा. तो वैसे करो तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी मिलेगी. Yes, you keep on counting step by step, because अगर हम बोले कि 5 दिन में मेरा गुस्सा ठीक हो जाए, तो it is not possible, but step by step when you move, so you do achieve the goal. That's great. Yeah. Okay, beta, what about your family? Like, how did your dadu, your dadi, your mama, papa, they respond to you when they see the change? तो उनको कैसा लगा कि yes, I mean, what was their response to your change in behavior and मतलब attitude? they was happy also, they was very happy कि यहाँ की, मतलब as in पंजाबी लैंग्वेज की पुत्र सुधर गया है. Oh my इन God, पंजाबी God, लैंग्वेज great. कि बच्चा अब सुधर गया, मतलब नॉर्मली ऑन अ ट्रैक आ रहा है. कि क्योंकि आई सेड कि मेरी जो 10th की जो मेरी बैचमेट्स थे, तो हम सारे मस्ती वाली थे, तो थोड़ी सी लैंग्वेज में भी, बिकॉज इंदौरी में वही हाउ हाउ वाली लैंग्वेज वगैरह चलती है, तो Okay. थोड़ी लैंग्वेज में भी फर्क आ गया था इतने साल से इंदौर में रहने में. तो फिर उसके बाद फिर आप फिर इसमें आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, तो फ्रेंड्स जैसे बातें करते हैं. फिर थोड़ी सी वो, जब घर में लॉकडाउन शुरू हो गया, तो फिर वही जैसे फ्रेंड से बातें करते थे वैसे ही घर वालों से बातें करनी शुरू कर दी. तो सबको लग रहा था कि इसके अंदर एक नॉर्मली चेंज आ रहा है. तो फिर देन आई स्टार्टेड पॉजिटिव मंत्रा क्लासेस. तो फिर जब वो खत्म हुई, तो फिर उन्होंने नोटिस किया कि हाँ थोड़ा तो कुछ तो चेंज आया है, धीरे धीरे करके पूरा चेंज आ जाएगा. Okay. अच्छा बेटा, यू नो दिस, ये जो स्पीच की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Because I see when I meet students, third standard के बच्चे भी, this abuses is a big problem in the society today. किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, स्टूडेंट सभी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टार्टिंग से खैर योर बैकग्राउंड इज लाइक दिस, दैट यू नेवर यूज अब्यूजेस एंड ऑल, बट व्हाट इज योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर एज अबाउट द स्पीच, द वर्ड्स दे यूज? इस सेट की उनकी वो मेंटालिटी बताती है. अगर मैं नॉर्मली ऐसे बोलूं कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनकी मेंटालिटी कैसी है, कि हाँ कि वो ऐसे बोल के क्या बताना चाह रहे हैं. अगर वो अब्यूज कर रहे हैं किसी दूसरे को, दूसरे का कुछ भी नहीं बिगड़ना, ना उनका कुछ बिगड़ना है, दोनों ने वैसे ही रहना जैसे वो पहले थे, नॉर्मली रहना है दोनों ने. तो उसको अब्यूज करके क्या मिल जाएगा उस चीज से, और वो अब्यूज सुन के उसको, जो फिर वो लड़ाई वाले मोटिव में आ जाता है कि तूने मेरे को अब्यूज करा, फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है. तो फिर उसके अंदर कुछ मोटिव नहीं रहता. आप नॉर्मल टॉक कर रहे हो, नॉर्मल टॉक करो. जैसे ही वो अब्यूज, वो
शुरू होती है तो फिर वो एक लड़ाई के मोटिव में चली जाती है कि यू अब्यूज्ड मी, आई विल टेल टीचर, क्योंकि इस बिकॉज 11th और 10th स्टैंडर्ड तक तो ये स्टूडेंट और टीचर का ही चलता है कि यस मैम, मैम टीचर ने ऐसे करा, मैम टीचर ने ऐसे करा। सो फिर उस 11th और 12th में आके रहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे वो तो अपने स्टूडेंट्स के अंदर ही बात रखो सारी, टीचर के पास इतनी ज्यादा लेके आने की जरूरत नहीं। तो फिर उसमें 10th स्टैंडर्ड तक रहता है ऐसा कि टीचर को जाके बोल के आओ कि इसने ऐसा बोला हमारे बारे में। तो फिर वो पेरेंट्स वगैरह आते हैं कि और सन, तो आप अगर वो तब एक बार कंट्रोल कर लेते, अब्यूज ना करते, तो इतना सब कुछ आगे होता ही ना नॉर्मली वे टू से। तो उसके लिए आप मेडिटेट वगैरह करो, अपने लैंग्वेज, अपने मेन मोटिव के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, तो उससे आप बहुत बेटर वे में आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। That's great. Actually, I'm so happy because you received it so well. What is more important is, see, we love to give, but the important thing is how much you receive. So you have received so well. That is more important. So Yeah. great, beta. I'm really thankful to you that you uh, came here for this conversation, this sweet little conversation, and you see when Thank you, the Anju. students will listen to you, they can connect with you. Ki yes, he is of our age, so maybe they will be motivated to do the same, to make a change in themselves if they feel that yes, there is a problem in us or there is a negative. थैंक यू कि आपने मुझ में ऐसा चेंज किया, क्योंकि उससे पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि स्पीच वगैरह की बात करूं कि हाँ, स्पीच का लोगों को इसमें रहता है कि स्पीच, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो ऑडियंस से कभी घबराते नहीं है, मतलब कि वो ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही दूसरे सोच रहे हैं, और और दूसरा ये सोचता है जो हम सोच रहे हैं, क्या वो दूसरा भी यही सोच रहा है हमारे बारे में, कि दूसरा कुछ और सोच रहा है हमारे बारे में। तो वहां पे एक कोलैप्स आ जाता है, तो फिर वहां पे आपको स्पीचेस में प्रॉब्लम आती है, फिर आप वहां पे कॉन्शियस हो जाते हो। फिर वो तब रहता है जब आप बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ ठीक है, मेरे को सिर्फ थोड़ी देर के लिए बोलना है, आई हैव टू स्पीक फॉर जस्ट 5 to 10 minutes, मेरे को बिल्कुल क्लियर है ना अपने मोटिव के बारे में, ज्यादा किसी की तरफ ध्यान नहीं देना। तो वो उसको एक एज स्टेज फियर भी कहते हैं कि उसको भैया स्टेज फियर है उसको। इसको मैं स्टेज फियर नहीं बोलूंगा, मैं ये स्टेज फियर नहीं, ये मेंटल कॉन्शियस है किसी बच्चे की ऑडियंस को अपने थ्रू लेने की। कि कुछ बच्चा ऑडियंस को अपने उसमें लेता है कि हाँ कि सब मेरे दोस्त हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, और कुछ बच्चा लेता है कि हाँ अरे इसने मेरी बात ऐसी सुन ली तो फिर मेरा मजाक उड़ाएगा बाद में जाके, ये ऐसे ऐसा हो जाएगा। ये एक मेंटल कॉन्शियस है, हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। हर एक बच्चा, फिर जो बच्चे को ऐसा नहीं होता वो स्पीच में बहुत अच्छा करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, स्पीचेस ऑर्गेनाइज करता है। और जो नहीं रहता वो नॉर्मल सिर्फ स्पोर्ट्स वगैरह में ही करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में यू डिडंट हैव टू गिव अ स्पीच आफ्टर यू विन अ मैच, आफ्टर गिविंग। तो फिर उसमें थोड़ा सा रहता है कि हाँ वो हर एक की मेंटल कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड ही करता है, इसलिए। Great. And see, one main question to you is, see, you are a student. So of course you have a goal to achieve in your life. By the way, what do you want to be? Have you decided or still like No, you I have have opted chosen for commerce, I commerce. suppose, right? Commerce. Yeah, commerce plus B. I have opted commerce plus Okay. B. So there is So a for goal. commerce plus B, हाँ कि आगे जाके business ही करना है। Okay. So because PCM, it was very physics, chemistry, maths. So it was very huge subjects for me, PCM for me. So I opted commerce with B. So in this, I will do business in See, front of business the is a very place. good option. You know, I take Hmm. sessions on entrepreneur development also in colleges. So I Yeah. guide the students to start their own startup actually, because it is Hmm. very important that you start your own business. Then you can keep, like you can be the mentor or the one who can feed others also, right? So you Hmm. can keep, maybe you will help them run their families. So it is a very good thing. Hmm. Even Prime Minister of India, he is also these days he is telling Atmanirbhar Bharat in every way. So that's a very good thing. Yeah. So beta, see, where I want to take your focus on that the life is not bed of roses. So many Yeah. times we see challenges also. So from Positive Mantra, how do you handle the challenges which might come in your life? Because you understand it is not same every time. Yeah.
So as you teach me, first of all, every challenge is in own challenge itself. कि हर एक चैलेंज के अंदर एक खुद चैलेंज होता है कि उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें, किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करें. एवरी चैलेंज हैज द सेम कैपेसिटी ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चैलेंज है मेरे पास कि नॉर्मल में किस पढ़ाई का लेता हूँ मैं, मेरे को आज इतने चैप्टर या इतना पोर्शन ऑफ अ चैप्टर खत्म करना है. नॉर्मल थिंग. और इतना चैलेंज है कि कल मेरा पेपर है. तो उसमें क्या है, उसके अंदर आपको जब पता है कि कल पेपर है और आपका इतना पोर्शन बच्चा, पहले तो घर वालों से मार पिटेगी, पहले क्यों नहीं कंप्लीट करा, पहले कंप्लीट कर लेता, अब तक 11th आवर पे नहीं हाँ आती हाँ. बात. तो फिर उसके बाद उसके उसके आप गोल सेट करो. अभी 10:30 बज रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ने बैठना है, क्योंकि every student needs a sleep of maximum 8 hours to be very peaceful mind in tomorrow morning. Yes. So आप 10 साढ़े 10 से 2 o'clock तक सेट करें, तो 10:30 to 2 o'clock उसके अंदर आप पोर्शन बनाए. इतने टाइम तक गोल एज ए सेट अ गोल, इतने टाइम में इतना पोर्शन खत्म हो जाएगा, इतने टाइम में इतना पोर्शन खत्म हो जाएगा, इतने टाइम में इतना. और 2 से 2:15 तक आप ऐसा बनाएं कि उसके अंदर क्या रहेगा, आप यस बेटा. हाँ. तो आपकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी उसके अंदर. एक तो जो आपने रात को 2:15 पे रिवीजन करी है, और जब सुबह उठ के एज एवरी इंडियन पेरेंट सेट ऑफ पॉइंट एक बार सुबह रिवीजन करके जा, तो उससे क्या रहेगा, पेपर में याद रहेगा कि हाँ मैंने सुबह पढ़ा था. बिकॉज एवरी पेरेंट और एवरी टीचर सेट कि सुबह उठ के याद करो और सुबह उठ के रिवाइज करो, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो सुबह उठ के 2 बार रिवीजन हो जाएगी आपकी उसी चीज के अंदर. क्योंकि अगर आप सुबह के लिए टारगेट छोड़ दोगे कि हाँ थोड़ा सा ये पोर्शन थोड़ा सा ही है, सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं, रिवाइज करके चले जाएंगे, तो आपका वो सिर्फ एक ही बार रिवाइज होगा. अगर आपने रात को थोड़ा टाइम निकाला, तो आपका वो एक बार रिवाइज एक्स्ट्रा भी होगा, और आप एक बार उस पूरे पोर्शन से थ्रू भी हो जाओगे कि हाँ इस पोर्शन में पूरा ऐसे ऐसे है, और इसके अंदर मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया है. तो आपको पेपर में चाहे उसके 1-2 क्वेश्चन आपसे छूट भी जाए, मैं ये नहीं बोलता कि आपको फिर वो पूरे क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट होंगे सारे अच्छे से. 1-2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो फिर कोई बात नहीं. अगर आपने 5 क्वेश्चन उसके अंदर आपने 3 तो अटेम्प्ट करे, अगर आप पूरा पोर्शन ही नहीं पढ़ के जाते, तो वो 3 भी नहीं अटेम्प्ट होते आपसे. करेक्ट. तो कम से कम आपने वो 3 अटेम्प्ट करे, चाहे वो 2 छोड़े, चाहे वो 2 नंबर के थे या फिर 5 नंबर्स के थे. हाँ. सो आप, इसलिए हाँ बेसिकली ना ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत ज्यादा बॉदरेशन ले लो तो इट्स ओके, लाइक यू हैव टू बी इन अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. दैट्स ट्रू. हाँ. ग्रेट बेटा. सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ योर एज? कुछ बोलना चाहोगे? मैं किसी को कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहूंगा. मैं सिंपली यही बोलना चाहूंगा मेंटल कॉन्शियस के बारे में, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे डिसाइड, अच्छा बुरा डिसाइड ऐसे होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वो कैसे बिहेव कर रहा है दूसरों के साथ, उसकी टेबल मैनर्स कैसी हैं, हाउ ही यूज्ड टू स्पीक विद ईच अनदर. सो फर्स्ट, अगर आप मेंटल कॉन्शियस पे, अगर आप अपने अंतर मन में अगर आप वो चीज बिठा लोगे, अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे एक बार अगर आप, फिर आप हर जगह अगर जाओगे तो आपका गुस्सा भी कंट्रोल हो जाएगा. आपको कहाँ गुस्सा दिखाना है वो भी आपको सीखा आ जाएगा कि ठीक है यहाँ हो चुका है, यहाँ गुस्सा कंट्रोल नहीं हो सकता, यहाँ गुस्सा करना पड़ेगा. ये नहीं कि अगर आप ऐसे करो तो आपको गुस्सा कभी नहीं करना. जहाँ नेसेसिटी है वहां आपको जरूरी है करना कि हाँ ठीक है यहाँ थोड़ा सा बनता है, क्योंकि ये थोड़ी गलत हुई है बात मेरे लिए या किसी और के लिए. तो सबसे पहले नॉर्मली मेंटल कॉन्शियस पे वो करे. तो एज एवरीबडी नोज कि आप मेंटल कॉन्शियस पे बहुत अच्छा करवाती हैं. सो आई वुड रिकमेंड पॉजिटिव मंत्रा फॉर मेंटल कॉन्शियस स्टेबिलिटी. सो एज यू हैव सेशन फॉर दैट, आई Yes, actually I talk to many students and we are basically doing this for personality full circle. तो पर्सनालिटी फुल हाँ. सर्कल में आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, सभी सभी कुछ आ जाता है, थॉट प्रोसेस. सो बेटा Okay. आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई थैंक योर पेरेंट्स, योर दादू दादी, जिन्होंने आई मीन they did it for you because they inspired you to do this. So that is a Yeah. gift from them, I suppose. है ना, दादा दादी ने इतनी प्यारी गिफ्ट दी हाँ. आपको, so I thank them. हाँ. So okay बेटा, thank you so much. Thank you, Okay, Auntie. Thank you also. okay, bye. Yeah, yeah.